Now that you're a student, you're still a student, I believe about 60–70% is happening your way. When you get married, the percentage will get reversed. We don't… So hello warriors, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको ये स्पीकिंग की बहुत स्पेशल सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव सीरीज। लास्ट एपिसोड जो था 2 दिन पहले, उसमें मैंने यूज़ किया था अर्नब गोस्वामी के एक छोटे से स्पीच को, और उस स्पीच को एक्सप्लोर किया था कि हाउ टू जनरेट स्पीच, आप अपनी स्पीच को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे जनरेट करेंगे। और देन वी टुक द सजेशंस फ्रॉम यू गाइस कि आप सजेशंस दो कि अब हम आगे चल करके किन स्पीकर्स को उठाएं। बहुत सारे सजेशंस आए थे एंड वन ऑफ द सजेशंस वाज सदगुरु। एंड नो डाउट सदगुरु इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्पीकर्स इन कंट्री। तो आज मैंने उनकी बहुत छोटी सी स्पीच उठाई है, उस स्पीच का हम बहुत अच्छा सा पोस्टमार्टम करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम बोलते हैं तो कैसे हमारे विचार आपस में जुड़ना चाहिए और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे स्पीच का फ्लो बनता है। जब उन चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। Education is of value to do certain things. But what should we be doing as individual human beings, as a generation of people? What should we be doing in our lives? You don't do some fanciful thing that you like to do. You must do what's most needed, isn't it? Isn't it so? If you get carried away by situations, today you saw a train burning, so you want to become a firefighter. Tomorrow you saw something, you want to become that. In reaction, in emotional reaction, you choose to become something. Because you did school, you went to a college, because you did college, you went to the next thing and the next thing, and you end up with a PhD. What to do? It's dangerous, you know. Because the education scientists are saying if you go through 20 years of formal education and land up with a PhD or something, 70% of your intelligence is irrevocably destroyed. Yes, you become a very knowledgeable idiot. So are you preparing for a university or the universe? That's where you have to live, unless you want to become an academic. I'm not saying these things are wrong, but human beings, sensible human beings must invest their life towards what is needed most, isn't it? The same job, the same marriage, the same situations, they're taking your life. At one day it looked like heaven, after some time it looks like hell, isn't it? Not because there's something wrong with those jobs, simply because you're doing it for the wrong reason. You should not decide your life and the course of your life based on immediate compulsions. You decide in your life, if you do this for 100 years and look back, after 100 years if you look back, is it still worthwhile? You do that. आज जो उन्होंने बात कही वो थोड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट और यूथ को फोकस करते हुए बात कही थी उन्होंने एक स्पीच में, और वो स्पीच आपने अभी पीछे देखी हुई है। और अब उस स्पीच के बहुत छोटे छोटे से स्लाइसेस आएंगे मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले, और उनको कोरिलेट करके आपको समझना है उस मूड को, उस भाव को, उस प्रोसेस को, सेंटेंस फ्रेमिंग को, और कैसे शब्द आते हैं किसी भी लैंग्वेज के हों हमारे दिमाग में और कैसे हम उनको प्रेजेंट करते हैं, राइट? Education is of value to do certain things. But what should we be doing as individual human beings, as a generation of people? What should we be doing in our lives? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उनका जो एक लंबा सा थॉट है, वो थॉट ये लिखा हुआ है, और उस थॉट को अगर हम पढ़ते हैं और इसके बाद उस थॉट का पोस्टमार्टम करते हैं तो देखते हैं कैसे हम जनरेट कर सकते हैं सिमिलर थॉट उन्होंने दिया, एजुकेशन इज ऑफ वैल्यू टू डू सर्टेन थिंग्स, बट व्हाट शुड वी बी डूइंग, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर यह पॉइंट बहुत जरूरी है नोट करने वाले, जिसको भी मैं डिस्कस करूंगा। एज इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, as a generation of people,
व्हाट शुड वी बी डूइंग इन आवर लाइव्स, वन स्मॉल सेंटेंस जिसमें इन्होंने बहुत कुछ कहा है, कैसे थॉट बनते हैं, कैसे जर्मिनेट होते हैं और कैसे हम उससे आगे बढ़ते हैं, सिर्फ उस पर बात की जाएगी। तो हम पहला उठाते हैं टू डू सर्टेन थिंग्स, और इस बात में क्या बात है जरा उस बात की गहराई समझने की कोशिश करें। सी एजुकेशन इज टू डू सर्टेन थिंग्स। अब हम इस पार्ट को अगर एक्सप्लोर करें, मैं आपसे कहता हूं कि आपका इंटरव्यू हो रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, तो क्या आप इंटरलिंक नहीं कर देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और आपकी एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया है? तो हमें सिर्फ इसमें से थॉट को एक्सप्लोर करना है, राइट? तो मल्टीपल थॉट्स का एक्सप्लोर करना है, कौन सी चीजें आपको करनी है। नेचुरल सी बात है कि आपको सक्सेसफुल होना है, एक बात यह आ रही है, आपको मैरिज करनी है, आपको कार लेनी है, आपको हाउस लेना है, आपको सोसाइटी को सर्व करना है, आपको एक बहुत लंबे वॉयज पे जाना है, एक लंबी यात्रा पे जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में तैरना चाहिए। जब ये सारे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे तो आपका थॉट एक्सप्लेनेशन बन जाएगा कि हम कैसे इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज टू डू सर्टेन थिंग्स। तो जैसे ही सदगुरु यहां पर खत्म करते हैं टू डू सर्टेन थिंग्स, वहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां पर वो सर्टेन थिंग्स कौन सी हैं। जब उन सर्टेन थिंग्स पे आप चले जाएंगे तो आपका अपने आप में एक सेंटेंस बनने लगेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद में जो दूसरी बात उन्होंने कही है, बट व्हाट शुड वी बी डूइंग, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो मैंने बट बोला है, इसको बोलते हैं हम, बहुत अच्छी तरह से अगर इसको देखा जाए लैंग्वेज में, तो ये कंट्रास्ट सिग्नल है। लाइफ में कंट्रास्ट सिग्नल बहुत मैटर करते हैं। स्पेशली जब आप कुछ भी बात अपनी कर रहे होते हैं तो कंट्रास्ट सिग्नल्स चाहिए। कंट्रास्ट सिग्नल्स का मतलब क्या? एकदम विरोधी बात। सीधी सी बात है यार, अगर हम हां में हां मिलाएंगे तो विचार नहीं आएंगे, जब विचार नहीं आएंगे तो प्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो प्रेजेंटेशन हमारा ब्लॉक होगा। लेकिन जब हम किसी चीज का कंट्रास्ट कर देंगे तो हमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें सामने आने लगेंगी जो पहली बात का अपोज है, और तब हम एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे बट यूज किया गया है, अब बट की जगह अगर मैं बोल दूं ऑल्दो, जितने सारे भी आपको ऐसे वर्ड मिले उनको दिमाग में बिठा लो। कभी कभी हम ऑल्दो बोल देते हैं, कभी कभी हम इंस्पायर्ड बोल देते हैं, कभी कभी डिस्पायर्ड बोल देते हैं, इवन दो बोल देते हैं। जैसे इवन दो, अब आपने एक सेंटेंस बोलना है इवन दो, अब अच्छी तरीके से, जैसे इवन दो ही इज रिच, हालांकि वो रईस है, इसका मतलब खर्च नहीं करता है, तो आपको एक सेंटेंस का फ्रेमिंग मिल गया, आपको एक सेंटेंस बोलने की ताकत मिल गई है। तो ये जितना भी थॉट रिवर्सल क्लूज हैं या जितने जिसको हम बोलेंगे कंट्रास्ट सिग्नल्स हैं, इन कंट्रास्ट सिग्नल्स को आप तैयार कर डालिए, राइट? सी, अब आप गए एसएसबी में और उन्होंने कहा कि लास्ट बार आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, तो आप वहां पर क्या कहोगे? इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क, माई बेस्ट प्रेजेंटेशन, समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर, सो आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। देखो अभी मेक इट वर्ड यूज कर रहा हूं, आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट फाइनली। तो मेक मीन्स बनाना होता है, तो यहां पर क्या मेक मतलब सिलेक्शन के लिए आप यूज कर रहे हैं। एक शब्द 10 तरह से यूज किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत यह है कि कितने ज्यादा से ज्यादा आप थॉट्स को ले आए। जब बहुत सारे थॉट्स होंगे तो इतना तो प्रेजेंटेशन निकल ही जाएगा। वी गेट ब्लैंक ओनली व्हेन वी लैक थॉट्स। थॉट्स की कमी होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और थॉट्स तब आते हैं जब हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम चीजों को कंट्रास्ट करेंगे, किस तरह से चीजों को लिंक करेंगे, चीजें अपने आप बनती चली जाती हैं। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं और इस पे सेंटेंस फ्रेम करिए। सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप सेंटेंस फ्रेम कीजिए, सेंटेंस को बोलिए। मैंने आपको जितने भी यहां पर कंट्रास्ट थॉट्स दिए थे, उन सारे थॉट्स को अब आपको बोल लेना है, उन पे सेंटेंस बना लेना, उनका रिवीजन करना है। अब देखो अगला उन्होंने जैसे ही वो बात कही है, तुरंत गुरु के मुंह से निकला इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और अ जनरेशन ऑफ पीपल। सी, अब यहां पर उनका सी, वी आर जस्ट रीडिंग इज साइकोलॉजिकली रीडिंग इज माइंड, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसका माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर ने जो भी बोला है उसको हम कैसे एसिमुलेट करें अपने थॉट में। सी, एक बात होती है इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और जनरेशन ऑफ पीपल। सी, हम क्या करते हैं, एक हमारा सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड होता है, सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड होता है। दूसरा फिर हम सोसाइटल या सोसाइटी सेंट्रिक हो जाते हैं, राइट? सोसाइटी सेंट्रिक, जहां पर हम सबकी बात करेंगे। यहां पर क्या किया, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की एजुकेशन का आपका रोल क्या है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग
और यहां पर क्या उन्होंने, उनको तुरंत अगला थॉट मिला, जैसे ही उन्होंने एज बोला तो एज के संग उन्होंने तुरंत एज लगा करके अगला थॉट कर दिया, जनरेशन ऑफ पीपल। सी, स्पीकर इज स्पीकिंग एंड यू शुड बी एबल टू रीड हिम व्हाट द वे ही इज स्पीकिंग। जैसे मैंने भी अभी जो बात कही है, इस बात को आप समझने की कोशिश करो। द वे ही इज स्पीकिंग मैंने बोला है, तो इसके पीछे, मेरे बोलने के पीछे के रीजन क्या है? क्या मैं फिलर की तरह यूज कर रहा हूं? क्या मैं यहां पर शब्दों में अटक गया था तो मैं एक ऐसा शब्द यूज करना चाह रहा हूं जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो उस चीज को फिल करने की कोशिश कर रहा है, जो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम नॉट ब्लैंक, आई एम नॉट ब्लैंक बिकॉज आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फिलर। तो बहुत सारे फिलर्स भी हमें यूज करना पड़ते हैं, एंड ये जो कंट्रास्ट सिग्नल्स हैं ये उन फिलर्स की तरह ही हैं। आपको सिर्फ सोच लेना है। ग्रामर आपको बहुत ज्यादा आती है, इतनी ज्यादा ग्रामर आती है कि ग्रामेटिकली यू कैन नॉट बी रॉन्ग, ग्रामेटिकली यू कैन नॉट बी रॉन्ग। द ओनली थिंग व्हाट इज नीडेड, अब देखिए, द ओनली थिंग व्हाट इज नीडेड, मैं बहुत बोलता हूं, तो ये एक पर्टिकुलर थॉट है जो मेरे दिमाग में फिक्स हो गया है और मैं उसको बोलता ही रहता हूं, बराबर बोलता रहता हूं, राइट? सो व्हाट शुड वी बी डूइंग इन आवर लाइव्स? आगे उन्होंने बोला कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, व्हाट शुड वी बी डूइंग इन आवर लाइव्स? क्या हम इस सेंटेंस को मल्टीपल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? व्हाट शुड वी बी डूइंग टुनाइट? आर वी गोइंग टू हैव अ पार्टी और वट एवर? तो यहां पर हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, राइट? थ्रोज अ क्वेश्चन टू द ऑडियंस टू गेट एंगेज। यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक चीज और देखिए, व्हाट शुड वी बी डूइंग इन आवर लाइव्स। यहां पर जो सदगुरु ने लाइव्स के बाद में इंट्रोगेशन लगाया है तो उन्होंने क्वेश्चन फेंका है ऑडियंस के बीच में। अगर आप बहुत माइक्रो एनालिसिस करें किसी भी स्पीकर की तो वो क्वेश्चंस फेंकता है। जब वो क्वेश्चन फेंकता है, जैसे मैंने अभी क्या, मैंने कई बार इस बीच में आपके क्वेश्चन फेंके, तो जब हम क्वेश्चन फेंकते हैं तो ऑडियंस एंगेज हो जाती है, स्पीकर को टाइम मिल जाता है अपने थॉट को प्रोसेस करने के लिए ताकि वो अगली बात रख सके। ये छोटी छोटी चीजें आप इनको समझने की कोशिश करिए। If you get carried away by situations, today you saw a train burning, so you want to become a firefighter. Tomorrow you saw something, you want to become that. In reaction, in emotional reaction, you choose to become something. आगे देखिए, इफ यू गेट कैरीड अवे, अब यहां पर आपको गेट कैरीड अवे जैसा वर्ड मिल रहा है। अब पूरे सेंटेंस को देख लीजिए, यहां पर इफ आ रहा है, राइट? इफ यू गेट कैरीड अवे बाय सिचुएशन, अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो। टुडे यू सॉ अ ट्रेन बर्निंग, अब देखो टुडे यू सॉ, आज आपने देखा अ ट्रेन बर्निंग, तो आप देखिए अ ट्रेन के बाद में बर्निंग आ रहा है, ट्रेन इज बर्निंग नहीं आ रहा है। तो ऐसे जहां कहीं भी आपको जेरेंड मिले खूब यूज कीजिए, राइट? टुडे यू सॉ अ ट्रेन बर्निंग, सो यू वांट टू बिकम अ फायर फाइटर, तो आप एक फायर फाइटर बनना चाह रहे हैं। यहां से उनको एक थॉट मिल गया कि हम इंपल्सेस पे बोलेंगे, पहले से प्लान नहीं होता है। See, all the good speakers, they hardly plan beforehand. अब देखो मैंने beforehand यूज किया, यानी कि पहले से। So all the good speakers, they don't plan beforehand. While speaking, thought आ जाते हैं दिमाग में। अब इसके लिए जैसे मैं बता रहा हूं कि see, I or most of the people like whoever is watching this channel, I mean at the moment, अब देखिए मैंने यहां पर I mean यूज किया है। ये I mean क्या था? ये I mean फिलर था, क्योंकि मुझे उस समय कोई शब्द नहीं मिल रहा होगा जब मैं यूज करूं, तो ऐसे फिलर्स का यूज होना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या बोलने की कोशिश की कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, द मोस्ट ऑफ योर फैकल्टी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो हम लोगों के संग में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर आप इन जनरल अगर प्रोसेस में देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, इस पूरी चीज के लिए अगर आप देखिए, पूरी चीज के लिए देखिए तो इंपल्स का यूज किया गया है। और थॉट, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं जब शुरू में बोलता था, शुरू मैंने स्पीकिंग शुरू की थी तो मैं हर चीज से बात करता था, दैट वॉज द ओनली वे टू कम्युनिकेट। सो अभी कैसे फैन लगा हुआ है, सो वाओ इट्स एन इलेक्ट्रिकल फैन, सो फाइन। इफ यू आई नो लिटिल बिट फिजिक्स, अब इफ दो बार निकला है, ये फिलर्स हैं बाबू, इनको समझने की कोशिश करो। मैंने फैन से बात करनी शुरू की एंड द अमाउंट ऑफ फिजिक्स आई नो मैंने उसमें यूज कर लिया, राइट? एंड दो माई फिजिक्स इज नॉट वेरी गुड, अमित सर अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे। सिमिलरली इफ आई हैव टेकन योर थिंग्स अराउंड, और मैंने यहां पर बात कर ली, एक पोस्टर लगा हुआ, एक न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर में चीजें पढ़नी शुरू की मैंने, तो मैंने न्यूज़पेपर से बात करनी शुरू कर दी। सो आई टॉक टू कैमरा, आई टॉक टू वॉल्स अराउंड, सारी चीजें यूजिंग प्रीपोजिशन, वॉल से बात करना शुरू कर दीजिए, रूफ से बात करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट गो में
you have to speak and you have to speak whatever is coming before you, आपके सामने और इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाटएवर जो भी सामने आ रहा है उससे बात करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा आपका कम्युनिकेशन अपने आप में बेहतर होने लगता है। बहुत सारी चीजें हैं, पिच पे टोन की बात हम बाद में करेंगे। इन फर्स्ट गो व्हाट इज नीडेड, देखो व्हाट इज नीडेड फिर निकला व्हाट इज नीडेड, किस चीज की जरूरत है कि कम से कम एक सेंटेंस की फ्रेमिंग तो शुरू हो, और सेंटेंस की फ्रेमिंग हमारी तभी शुरू होगी जब हम चीजों को देखेंगे। देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टुडे बोला, टुडे यू वांट टू बिकम। अब टुडे, टुमारो और यस्टरडे हम सबकी लाइफ में फिक्स है। हम सब जब भी टुडे बोलेंगे टुमारो याद आएगा या यस्टरडे याद आएगा। तो जैसे ही सदगुरु ने यहां बोला टुडे यू सॉ ट्रेन बर्निंग सो यू वांट टू बिकम अ फायर फाइटर, टुमारो यू सॉ समथिंग यू वांट टू बिकम दैट। तो ये टुमारो उन्होंने पहले से प्लान करके नहीं बोला था, लेकिन ये एक फ्रेम है ब्रेन में जिस फ्रेम ने फोर्स किया कि अब आप टुमारो यूज कीजिए। अगर ये और ज्यादा इसको एलैबोरेट करते तो ये यस्टरडे भी यूज कर देते। तो टुमारो यू सॉ समथिंग, कल आप कुछ और देखा और वो आप बनना चाहते हो। इन रिएक्शन, in emotional reaction you choose to become something, in reaction, in emotional reaction। अब इसका रिएक्शन क्या, एक्शन रिएक्शन। एक्शन आपने देखा आग लगी हुई है, रिएक्शन क्या हुआ, फायर फाइटर बनना चाह रहे हो। इन इमोशनल रिएक्शन, एंड दीज आर द इमोशनल रिएक्शंस, क्योंकि चीजें इंपल्स निकल करके आ रही हैं। क्विक परचेजिंग इंपल्स हमारे वहां पे होते हैं जहां पे हमें तुरंत लगता है ये करो ये करो। अब सदगुरु ने यहां से बोलना शुरू किया, अभी नहीं पहले नहीं बोल रहे थे, उनपे किसी ने क्वेश्चन एक फेंका, किसी ने क्वेश्चन फेंका, सदगुरु व्हाट शुड स्टूडेंट डू फॉर स्टडीज और फॉर देयर करियर। अब सदगुरु ने सोचा मैं इस पे क्या बोलूं, तो सदगुरु स्टार्टेड ऑफ इमीडिएटली उन्होंने शुरुआत कर दी कि क्या करके शुरुआत कर दी। अगर आप फिर से पीछे चल के देखें जल्दी से, तो उन्होंने शुरुआत कर दी एजुकेशन इज ऑफ वैल्यू टू डू सर्टेन थिंग्स, ये उनका थॉट आया। अब इसको उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, इंडिविजुअल जनरेशन पे गए, एजुकेशन टू डू सर्टेन थिंग्स, यहां से होते होते वो कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे इस बात तक, रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन, यू चूज टू बिकम समथिंग। अब यहां पर आपको क्या करना है कि ये जो गेट कैरीड अवे है, इसको मैंने रेड किया है, इटैलिक ने किया, रेड किया है, और इसको साइज इसका बोल्ड किया है, जो व्हाटएवर। अब इसको आपको समझना है कि गेट कैरीड अवे क्या है। ये एक फ्रेज है, और फ्रेजेस का बहुत बड़ा रोल है हमारे कम्युनिकेशन में। जैसे मैं बोलता हूं कैरी ऑन, अब क्लास में मैं गया, बच्चे काम कर रहे हैं, मैंने कहा ओके गाइस कैरी ऑन, तो मतलब जारी रखो, करते रहो। तो कैरी को आपको समझना है, और ये आपने कितने रटे हुए हैं अपने रिटन में, रिटन के लिए तो रट डाले, स्पोकन में आप बैठ गया करके, तो भैया यूज करो इनको। अब कैरीड अवे को अगर आप देख लो, इफ यू गेट कैरीड अवे बाय दिस सिचुएशन, तो कैरीड अवे का मतलब क्या होता है, लूज कंट्रोल बाय दिस सिचुएशन। इफ यू गेट कैरीड अवे बाय दिस सिचुएशन, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब हमें समझना है छोटी छोटी चीजों को, जैसे कैरी ऑन, आपने कैरी ऑन कर लिया, रट लिया, तैयार कर लिया, दिमाग में बैठ गया, और इसका यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैं छोटा सा बोलूं यहां पर कि आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, मुझे उनको बहुत तारीफ करना चाहिए, बिकॉज ही कैरीज हिमसेल्फ इन ए फैंटास्टिक मैनर। देखो कितने बढ़िया सा सेंटेंस है, ही कैरीज हिमसेल्फ, सो ही कैरीज हिमसेल्फ। बोलना शुरू करो, ही कैरीज हिमसेल्फ, वो अपने आप को लेकर के चलते हैं, इसका मतलब नहीं उठा के चलते हैं, वो अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, किस तरह से, कितना स्मार्टली कैरी कर रहे हैं। अब यहां पर एडवांस स्मार्टली भी लग दिया, ही हिमसेल्फ कैरीड सो स्मार्टली, देखो हो गया ना, ही हिमसेल्फ कैरीड सो स्मार्टली दैट ही हैज बिकम, देखो यूज किया मैंने, क्योंकि मुझे आगे पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है, तो मैं कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तरीके होते हैं इंग्लिश बोलने के, कुछ और नहीं है, कुछ रटना नहीं है, बोलना, अ लॉट ऑफ बोलना, और साथ साथ आपको इन चीजों को समझना है। तो यहां पर देखो, इफ यू गेट कैरीड अवे बाय दिस सिचुएशन, तो यहां पर मैंने कैरी को, कैरीड अवे को, इसके बाद में कैरी ऑन को समझाया, कैरी ऑफ को समझाया। अब अगर इसमें हम लोग इन्हीं को उलझ जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेजेस हैं, राइट। अब कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल होना, तो ये सब आपको तैयार कर डालना है, यही आपको स्पेल उसमें यूज करना है। ऑफ, अब देखो ऑफ कहां यूज करते हैं, दूर कर दिया, डिस्टेंस कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, पुट ऑन कर दिया। अब छोटी छोटी चीजें बोलो ना घर में, फैन है, फैन के लिए बोल दिया, यहां से चिल्ला दिया सिस्टर को, स्विच इट ऑफ। अब देखो बीच में आ गया इट, स्विच इट ऑफ, बंद कर दो, ओके। इसके बाद में स्विच ऑन कर दो, स्विच इट ऑन कर दो। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें, जैसे हम लोग क्या किया, 3 लोग खड़े हुए हैं, अब गेट लाना है, जैसे गेट कह दिया, गेट दैट, है ना, ब्रिंग दैट,
इसके अंदर फेच दैट। अब फेच का मतलब क्या होता है, हम भी यहां हैं आप भी यहां हो, मैंने आपसे कहा फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, जाके लेके आओ, तो यूज करो भैया, हमें फेच यूज करना, FETCH आप यूज करो, गेट कहना। और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कुछ भी लगाते रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं। फेच की जगह गेट बोल दिया चलेगा, ब्रिंग बोल दिया चलेगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई आपको गोली मार देगा क्या? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी चलेगा भाई, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी चलेगा, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी चलेगा, गेट बाथ चलेगा, ठीक है, गेट आउट ऑफ द रूम चलेगा। तो हमें ऐसे यूज करना है चीजों को जिससे वो आपके दिमाग में बैठ सके अच्छी तरीके से, राइट। तो चलिए थोड़ा सा और अब देखो एक बढ़िया सा यहां सिखा देते हैं, वो भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं बोल देना चाहिए। जैसे कैरी ऑन विद होता है, अब इसके संग कैरी ऑन तो लगा हुआ है और विद भी लग गया। अब कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, विद का मतलब साथ में। भैया समझ लो इसका मतलब क्या हुआ, कैरी ऑन विद का मतलब भैया आप किसी के संग आपकी फ्रेंडशिप है तो जारी रखो, अफेयर चल रहा है तो जारी रखो। तो अभी अपने आप को फ्रेंड को किसी को ये मत बोल देना कैरी ऑन विद योर स्टडीज, नहीं, यहां पर कैरी ऑन योर स्टडीज एंड कैन योर विद, तो यहां पर विद का सेंस आपको समझना होगा, छोटी छोटी चीजों को समझना होगा कैसे होगा। It's dangerous, you know, because the education scientists are saying if you go through 20 years of formal education and land up with a PhD or something, 70% of your intelligence is irrevocably destroyed. Yes, you become a very knowledgeable idiot. देखिए अब आगे इसके पहले जो आपने देखा उसमें सदगुरु ने क्या बोला, और अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट्स डेंजरस, उन्होंने कहा ये डेंजरस है। अब देखो यहां पर इसको याद कर लो, डेंजरस, ये हम लोगों की आदत है कि हम प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत बोलते हैं। आधे लोग इसको डेंजर बोलते हैं, भैया डेंजर नहीं है, ये डेंजर है। ये सब सीखना होगा क्योंकि आप नहीं पैदा हुए हैं CBSE ISC के बैकग्राउंड में, तो चीजों को आपको तैयार करना है। इट्स डेंजरस यू नो, इट्स डेंजरस यू नो। अब देखो वापस उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इट्स डेंजरस यू नो बिकॉज एजुकेशन साइंटिस्ट आर सेइंग दैट इफ यू गो थ्रू 20 years of formal education and land up with a PhD or something, 70% of your intelligence and irrevocably destroyed। एक बहुत ही स्टैंडर्ड सेंटेंस था, उस सेंटेंस को उन्होंने उठाकर ये बोल दिया। अब उन्होंने शुरुआत कहां से की, उन्होंने क्योंकि ज्यादातर लोग GD में भी अच्छे परफॉर्मर कौन होते हैं, जो एग्जिस्टिंग थॉट्स के अगेंस्ट बोलते हैं, अगेंस्ट बोलते हैं। जब एग्जिस्टिंग थॉट्स के अगेंस्ट बोलेंगे तो थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। जितना भी इन्होंने पीछे कहानी बोली, उस कहानी पे यहां करके वो क्या कहां खड़े हो गए आकर के, वो कह रहे हैं भैया एजुकेशन का जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे चले जाओगे तो बेकार है। तो कह रहे हैं इट्स डेंजरस यू नो बिकॉज एजुकेशन साइंटिस्ट आर सेइंग। अब इन्होंने साथ में एक स्टैंपिंग भी लगा दी, ये कहते हैं इफ यू गो थ्रू 20 years of formal education and land up with a PhD or something, 70% of your intelligence is irrevocably destroyed. Yes, you become a very knowledgeable idiot. अब एक बहुत ज्ञानी बेवकूफ बन जाएंगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, गो थ्रू। अब गो थ्रू को समझिए, गो थ्रू का मतलब क्या होता है, इफ यू गो थ्रू 20 years of formal education and land up with, तो हमें क्या है, हमें गो थ्रू को समझना है क्योंकि बहुत यूज होता है, हमें लैंड अप को समझना है क्योंकि बहुत यूज होता है। इनको समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर हम गो थ्रू की बात करें तो गो थ्रू का मतलब क्या हो गया, एक सेंटेंस देखिए आप, गो थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑन योर फोन, गो थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑन योर फोन। भैया कितना अच्छा सेंटेंस है, गो थ्रू द कॉन्टैक्ट्स ऑन योर फोन। अपने फोन पे जो कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं जरा उनको देखिए। अब ये सेंटेंस को आगे मैं बोल दूं, आपको बनाइए, go through the contacts on your phone and see if you have already saved his number or her number। बढ़िया सेंटेंस। So please go through the contact on your phone and please go through the last making call on your phone and see if you had already called him। क्या आप पहले उन्हें कॉल कर चुके थे? So get the number back and call him again। And if he is not replying, then what you are supposed to do? You have to call him again and again and again and again. You keep on doing until he picks up the phone, and he will be definitely annoyed because of making so many calls। अब देखो making calls, यहां पर मैंने यूज किया making calls क्योंकि हैबिट में है, तो अब ये आपको यूज करना है because of making so many calls। The man was annoyed, he was angry। He said, don't call me up again, don't call me up again।
हमें इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को पकड़ना है। एंड स्मार्टली इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग आपकी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं होगी। अब दूसरा इसमें क्या था, लैंड अप विद ऑफ PhD। अब देखो लैंड अप, यहां पर जो लैंड अप वर्ड दिया हुआ है कहीं ना कहीं, अब हमें इसको भी इसको भी यही हम समझ लेते हैं कि जो वर्ड यहां पर लैंड अप किया जा रहा है इसका मतलब क्या निकल रहा है। लैंड करते हैं हम लोग, लैंडिंग होती है, प्लेन लैंड करता है, तो अगर आप लैंड अप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये काम करने जा रहे हैं, आपने ये काम कर लिया। इफ यू लैंड अप विद अ PhD का मतलब आपके पास एक PhD की डिग्री है, राइट। तो आप देखो एक मैं बढ़िया सा सेंटेंस लिखता हूं कि आई लैंडेड अप विद माई ब्रोकन लेग। देखो अब ये मैंने सेंटेंस दे दिया आपको, आई लैंडेड अप विद माई ब्रोकन लेग, कि मैं भैया हड्डी तोड़वा करके खड़ा हूं। अब मैं बोलूं इसके पहले सेंटेंस बनाओ और इसके बाद में सेंटेंस बनाओ। सो इसके पहले सेंटेंस के थॉट सोचो, सारा गेम थॉट्स का है, विचारों का है। इसके पहले मैंने थॉट बनाने शुरू किए कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो मैंने आई वॉज बोला 2-3 बार, क्योंकि मैं सोचना था कि मुझे आगे क्या बोलना है। सो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, आई वॉज बैटिंग और आई वॉज बॉलिंग, यू नो, आई वॉज रनिंग आफ्टर द बॉल। सो रन आफ्टर का मतलब क्या होता है यहां पर, पीछे पड़ना। तो आई वॉज रनिंग आफ्टर द बॉल, यू नो, आई कॉट इट, और आई कॉट इट बोल दो, और इसके बाद में आई थ्रू इट बैक, वापस फेंकी मैंने इसको, एंड और समवन एल्स थ्रू इट बैक एंड इट डायरेक्टली हिट। अब हिट ने मत बोल देना, हिट ऑन माई लेग एंड देन आई लैंडेड अप विथ माई ब्रोकन लेग, राइट। आई वॉज के बाद में क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। सो आई वॉज टेकन, कहां ले गया, टू द डॉक्टर के पास ले जाया गया मुझे, एंड देन डॉक्टर डिड समथिंग। तो एक सिचुएशन बनाई, उस सिचुएशन के आसपास की चीजों को जोड़ करके आपने बढ़िया ढंग से उस सेंटेंस को फ्रेम कर दिया, उस बात को फ्रेम कर दिया। सब लोग यही करते हैं। तो स्पीकिंग कोई आसमान से सीख के नहीं आता है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। सिचुएशन, आसपास के दिमाग उसको एसिमिलेट करता है और इसके बाद में हम उसको आराम से बोलते चले जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें एक और वर्ड दिया गया था बड़ा, उन्होंने फिर थोड़ा क्या ना, थोड़ा एटीट्यूड वाला वर्ड दे दिया, इररिवोकेबली डिस्ट्रॉयड। भैया इररिवोकेबली आम आदमी नहीं समझ पाएगा, तो शशि थरूर की अंग्रेजी नहीं बोलना है, प्लेन इंग्लिश बोलना है, एकदम प्लेन इंग्लिश बोलना है, समथिंग दैट एवरी इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू स्पीक। सो जस्ट यू हैव टू स्पीक नेचुरली, यूज सिंपल वर्ड्स। यू वोंट बिलीव इफ यू हैव इवन 1000 वर्ड्स, अगर आपके पास में 1000 वर्ड्स हैं, यू कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्पीकर्स ऑन दिस अर्थ, because while speaking we use merely 500 to 700 words, not more than. See, now I am speaking on my my own way, बोला मैंने क्योंकि मुझे फिलर चाहिए था, my own way, and my own way says that whatever I am speaking is speaking in such a simple language that every single word is going to be understood by you, going to be understood by you. This is where grammar plays important role, कि B के बाद में आपको अंडरस्टूड पता है, लगना है। सो अब आप समझ गए इस बात को। चलिए, सो यहां पर मैंने बोला वोका, इररिवोकेबली, तो भैया आपको तो पता है, मैंने इतनी बार पढ़ाया है। वोका मींस क्या होता है, वर्ड होते हैं। रिवोक का मतलब दोबारा हो गया, इररिवोक का मतलब निगेटिव हो गया, इररिवोकेबली उस खत्म हो जाएगा, वापस ही नहीं आ सकता है। So are you preparing for a university or the universe? That's where you have to live, unless you want to become an academic. I'm not saying these things are wrong, but human beings, sensible human beings must invest their life towards what is needed most, isn't it? The same job, the same marriage, the same situations, they're taking your life. At one day it looked like heaven, after some time it looks like hell, isn't it? Now see, इसके आगे उन्होंने क्या बोला, so are you preparing for a university? यहां उन्होंने बच्चों से सवाल किया, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्स। फिर पूरा सेंटेंस है, लेकिन हम पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी
और द यूनिवर्स। यहां पर समझे वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे ही उन्होंने बोला आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी, उनके दिमाग में तुरंत थॉट आया यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स और यूनिवर्सिटी मिलते जुलते शब्द है और दोनों एक से शब्द है। दोनों बात क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ने बात की एक छोटे एरिया की, यूनिवर्स ने बात कर दी बहुत बड़े एरिया की। तो शुरू में उन्होंने जो बात कही थी, क्या बात कही थी उन्होंने? कि सेल्फ सेंट्रिक हो, सोसाइटी सेंट्रिक हो, क्या हो आप? तो बस वही बात यहां पर आ गई। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी, तो यहां पर देखो आर यू प्रिपेयरिंग आ गया कि नहीं? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनडी, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, और आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, are you preparing for your lecturate, or are you preparing for your GD? So while you know are you preparing for, if you speak it 50 or 100 times, you will find now it is fitted, you know, on your organ of speech, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आप एकदम खतरनाक स्पीकर बनोगे। और द यूनिवर्स, इन्होंने फिर क्या किया? इसमें अपना स्टैंप पे कर दिया, यूनिवर्स लगा दिया। सो द सेम जॉब, अब थोड़ा इन्होंने और क्या एक्सप्लोर किया? वही नौकरी, वही शादी। अब चूंकि ये तो फिलोसोफर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों के लिए आई मीन द मैन इज नॉट मैरिड, तो क्या कर रहे हैं? द सेम जॉब, द सेम मैरिज, द सेम सिचुएशन, दे आर टेकिंग योर लाइफ, वो आपकी जिंदगी ले रहे हैं। वन डे इट लुक लाइक हेवन, एक दिन तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट लुक्स लाइक हेल, ये एकदम नरक लगने लगता है। तो जैसे उन्होंने यहां पर हेवन बोला, यहां पर उन्होंने हेल बोल दिया, इसको भी हेवन बोलते लोग, तो इट इज हेवन, राइट? हेवन एंड हेल बोला, इसके बाद उन्होंने लगा दिया इजंट इट, क्वेश्चन टैग। रिटन में तो क्वेश्चन टैग बहुत किए आपने, लाइफ में क्यों नहीं किए? बोलने में क्यों नहीं किए? अरे क्वेश्चन टैग बोलिए ना, खूब बोलिए क्वेश्चन टैग। आर यू कमिंग? माई फ्रेंड इज कमिंग, या किसी से फोन कर दिया, किसी सामने खड़े हो, बात कर रहे हो, यार टुनाइट वी आर गोइंग टू हैव अ गुड पार्टी, आर यू कमिंग? कुछ भी यार, आस्क क्वेश्चंस। व्हेन यू पुट क्वेश्चंस ना, अपने आप आपको लगेगा कि अभी आपकी स्पीकिंग रिच हो गई है। Not because there's something wrong with those jobs, simply because you're doing it for the wrong reason. You should not decide your life and the course of your life based on immediate compulsions. You decide in your life, if you do this for 100 years and look back, after 100 years if you look back, is it still worthwhile? You do that. Right? So not because there is something wrong in those jobs. अब यहां पर उन्होंने फिर क्या किया? फिर अपनी बात का उल्टा कर दिया उन्होंने, जो बोला सब गलत है, और इसके बाद में बोले नहीं 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 सब गलत नहीं है। Not because there is something wrong with those jobs. ऐसा नहीं कि नौकरियों में कोई गलती हो, सिंपली बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजन। लेकिन आप गलत कारण कर रहे हो। तो ये पहले सेंटेंस में पहुंच गए, एजुकेशन इज फॉर, समझ गए, फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स। वहां दिमाग इनका वापस घुमा और वहां घुमा करके कहने लगे कि आप गलत काम के कारण कर रहे हो। सो यू शुड नॉट डिसाइड योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी डिसाइड नहीं करनी एंड द कोर्स ऑफ योर लाइफ बेस्ड ऑन इमीडिएट कंपल्सन्स, कि भैया मुझे लग रहा है यार ये फायर फाइटर है तो मैं बन जाऊं, ये आईएएस है तो मैं बन जाऊं, ये फिल्मों में है तो मैं बना। बॉम्बे हर दिन इंडिया से कितना सारा यूथ जाकर के वहां पर लैंड करता है हीरो बनने के लिए, राइट? तो ये नहीं है भैया, दिस इज व्हाट पीयर प्रेशर, कि वो बन गया चाचा का लड़का, ये हो गया माँ, ये नहीं होना चाहिए। सो इमीडिएट कंपल्सन्स ना हो करके यू डिसाइड इन योर लाइफ, इफ यू डू थिंक फॉर 100 years। अब सोचो, ये बात तो इंटरव्यू में आती है कि वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years। तो लोग जानना चाहते हैं आपका विजुअलाइज कितना कर पा रहे हो, 20 साल बाद आप कहां खड़े होगे, 10 साल बाद आप कहां खड़े होगे, वही तो बात की जा रही है। एंड लुक बैक आफ्टर 100 years, इफ यू लुक बैक, इज इट स्टिल वर्थवाइल, डू यू दैट? सो क्या बाद में आप पीछे घूमोगे और देखोगे कि यार मैंने जो किया है वो मजेदार रहा, मेरी जिंदगी के लिए नहीं रहा, या फिर पछताओगे? तो देखो, इस पूरे प्रोसेस में जो कुछ भी उन्होंने बोला, एक पैरा, इस एक पैरा को मैंने बहुत कस के एलैबोरेट किया, साइकोलॉजिकल जो इसका पहलू था उससे एलैबोरेट किया, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू एलैबोरेट किया, ताकि आप समझ सकें कि स्पीकिंग के लिए
कुछ भी नहीं रटना है, स्पीकिंग के लिए थॉट जनरेट करने हैं। और जब आप थॉट जनरेट करने लगोगे तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। तो अपने आसपास की सिचुएशन से थॉट जनरेट कीजिए। जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के हर ऑब्जेक्ट से जनरेट कीजिए। जिस फ्रेंड के साथ बैठे हो उस फ्रेंड के शर्ट के कलर से लेकर के उसके स्पेक्टिकल्स तक हर चीज से थॉट जनरेट कीजिए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग थॉट। और इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दो वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ सेइंग ऑल दिस, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।